Hello everyone. So today we are going to start with our new chapter, chapter 3, that is pair of linear equation in two variable. Okay. See, some of the topics of this chapter is already deleted from the syllabus for this year, but still I will be completing this in my videos. So whenever it can be required by any for any other exam or something like that for you, so you can study or not, that depends on you, but still I'll be completing. Okay, so let's start with this thing, the thing pair of linear equation in two variable. समझते हैं क्या होता है ये, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे. You know about linear equations. देखो, from our 6th to 7th standard we started linear equation, studying about linear, quadratic equation. So when we are talking about linear equation, so that means what? In a equation, if highest degree is 1, if degree of a equation is 1, that means what? It is a linear equation. देखो, अगर डिग्री 1 है ना, डिग्री का मीनिंग क्या है? देखो, if I am writing x plus 3 equals to 11, see the degree of x. What is the power of x here? 1. Okay, now if I am writing x plus y equals to 5, see the degree of both x and y, the degree is 1, isn't it? Power is 1, that means the degree, the highest degree in the equation, if it is 1, that means it is a linear equation. See, this is a linear equation of one variable, only one variable is here, but this is a linear equation of two variables, because we are having two variables but both are having power 1, so that means it is a linear equation of two variables. Okay, now what is the standard form? स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं पहले. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. हाउ वी राइट अ लीनियर इक्वेशन, in which form we write a linear equation. So standard form of a linear equation is of the form ax plus by plus c equals to 0. This is the standard form, ax plus by plus c equals to 0. Okay, this is the standard form of a linear equation. You will see every time the question will be having, if it is in linear equation in two variable. Okay, I'll forget two variable. Okay, standard form of linear equation in two variable is what? Ax plus by plus c equals to 0. And every time whenever you will see a question of linear equation, you will see the things something like that. Okay, now I am moving to exercise questions based on these linear equation in two variable. So first we will be discussing about exercise 3.2. Why 3.2? Why not 3.1? I am discussing here. See, in exercise 3.1 we are having question based on statement, but before the statement type question I want to discuss some things. उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और वो क्या है? नॉर्मली मीन्स वेयर द इक्वेशन इज ऑलरेडी फॉर्म्ड. उसके बाद हम उसको 3.1 को करेंगे. वी आर नॉट लीविंग इट, हाँ, हम उसको कंप्लीट करेंगे, बट बिफोर दैट. एंड इन एक्सरसाइज 3.2 ऑल्सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ स्टेटमेंट टाइप, है ना. फर्स्ट वाला जो है स्टेटमेंट टाइप है, हम बाद में उसको करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे. बट फर्स्ट लेट्स सी इन सेकेंड क्वेश्चन व्हाट वी आर गिवन विद. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, सी वी आर गिवन विद टू इक्वेशन, है ना, दो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखना. 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0. These are the two equations we are given with. Now, what we need to do? The question is saying if you are having any two equation of the form a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अब आप ना ये बताओ कि ये जो इक्वेशंस हैं दोनों, वो दोनों किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो दोनों पैरेलल हैं, या फिर वो दोनों क्या हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हैं. ठीक है, तो उसके लिए ना देखो, मैं बहुत पहले आप लोगों को एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न. ओके,
इफ़ यू आर गिवन विद एनी टू इक्वेशन a1x, देखो दो इक्वेशन हमेशा होंगी क्योंकि फॉर सोल्विंग अगर हमें टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को सोल्व करना है ना तो एटलीस्ट वी नीड टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशंस, है ना। टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को सोल्व करना है तो एटलीस्ट वी नीड टू इक्वेशन, सो वी कैन सोल्व, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. नाउ in this case you need to check if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. देखो ध्यान से देखो, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, दोनों इक्वल नहीं है, अगर a1 upon a2 जो है b1 upon b2 के इक्वल नहीं आता है, then the equations are intersecting, means these lines, you know the linear equations are there, okay, that means they are what, they are intersecting lines, they are intersecting lines. And if two lines are intersecting, देखो बेसिकली कॉमन सी चीज है, अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दे विल बी इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ना, दैट मीन्स दीज काइंड ऑफ इक्वेशन आर ऑलवेज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन, वाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनिक सॉल्यूशन? का क्या मीनिंग होता है कि ये सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका, x और y की सिर्फ एक एक वैल्यू आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी. इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2, मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल. सी दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. देन अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 और इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2, अगर तीनों ही इक्वल हो जाएं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तब क्या होता है? सी इन दिस केस दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस. अब ये कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं? यानी कि एक के ऊपर एक, भाई अगर एक लाइन ऐसे जा रही है ना तो दूसरी भी इसके जस्ट ऊपर ही जा रही है, कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा, एक लाइन जा रही है दूसरी भी इसके ऊपर ही जा रही है. दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस. और हाउ मेनी सॉल्यूशंस दे आर हैविंग? देखो ये तो इंटरसेक्ट कर रही थी सिर्फ एक पॉइंट पे, अब ये तो देखो ना एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं, अगर फर्स्ट लाइन ऐसे है सेकंड भी इसके ऊपर है, हाँ, सो हाउ मेनी सॉल्यूशन दे विल बी हैविंग? ये तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट. तो हम कह सकते हैं ना these are having infinite solution, infinite many solution. इन लाइंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. देन द थर्ड वन, अगर a1 अपॉन a2 तो इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन जो लास्ट वाला है नॉट इक्वल है, c1 अपॉन c2 नहीं है, तब कैसी लाइंस होती हैं? तब लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस. तब लाइंस कैसी आएंगी? पैरेलल. देख लो ऐसे आएंगी, एक लाइन होगी और दूसरी उसके पैरेलल. अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब आते हैं पैरेलल लाइंस. और पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन. वाई देयर इज नो सॉल्यूशन? कैन एनीवन टेल? यस, नो सॉल्यूशन इज बिकॉज, क्यों? क्योंकि देख लो ना इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, पैरेलल हैं, कहीं पे नहीं मिल रही हैं वो, जब तक मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? तो ये चीज़ें ध्यान रखना है. फर्स्ट केस था ये वाला, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इंटरसेक्टिंग लाइंस. देन तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. और थर्ड में जब दो इक्वल हैं तीसरा नहीं है, दैट मीन्स पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन. ओके, सो नाउ वी कैन मूव टू आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन. नाउ वी कैन see what is given in our exercise and how we are going to solve. Okay, see exercise question. This is the question we are given with ना 5x minus 4y plus 8 and we need to tell कि ये दो lines जो हैं वो intersecting हैं, parallel हैं या क्या है. हाँ, तो इनको चेक करते हैं. अब यहाँ पे चेक करो, I'll write it again. Okay, मैं दोबारा लिखता हूँ सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज. 5x minus 4y plus 8 equal to 0. 7x plus 6y minus 9 equal to 0. Now check the value of a1. a1 की वैल्यू क्या है? 5. a2 की वैल्यू क्या है? 7. देख लो, जो फर्स्ट इक्वेशन में x y के साथ होता है वही होता है ना. देख लो a1x b1y c1, यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इसको कंपेयर करके और लिख सकते हैं. a1 की वैल्यू क्या आ रही है? 5.
b1 की वैल्यू क्या आ रही है -4, साइन भी लेना है, b1 इक्वल्स टू -4, c1 इक्वल्स टू +8, ओके, देन b2 इज इक्वल्स टू +6 एंड c2 इक्वल्स टू -9। अब देख लो, पहले निकालते हैं a1/a2, ये आएगा 5/7, देख लो a1/a2 किया 5/7। अब करते हैं b1/b2, कितना आएगा -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया -2/3। अब देखो ना a1/a2 और b1/b2 इक्वल है क्या? नो, सो वी विल राइट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होता तो अभी हमने डिस्कस किया था कैसी लाइन होती हैं, दैट मीन्स दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ओके, यू कैन सोल्व ऑल द क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं इसी तरह से करना है। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड वन इज सेइंग वेदर दे आर हैविंग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो इसी में सीख लेते हैं हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी। अगर a1/a2, ध्यान से देखना, अगर a1/a2 जो है वो हमारा किसके नॉट इक्वल है b1/b2 के, a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2, तो इसमें देखो हमारे पास क्या आ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज कंसिस्टेंट। तो हम इसको क्या लिखते हैं, कंसिस्टेंट भी लिखते हैं। सो वी विल राइट इट ऑल्सो कंसिस्टेंट। इफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर देयर, वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन भी मिल रहा है तो हम उसको कंसिस्टेंट भी लिखते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे आर हैविंग। ओके, देन अगर इनफाइनाइट, यहाँ पे भी हम लोगों को सॉल्यूशन, देखो इन दो केस में सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 तो ये तीन काम होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। अगर तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसमें भी कंसिस्टेंट, क्योंकि वी आर गेटिंग ना, वी आर गेटिंग अ सॉल्यूशन, वी आर गेटिंग अ सॉल्यूशन, सो इसमें भी कंसिस्टेंट। बट जब हमारे पास ये सिचुएशन आती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये आ जाता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये वाला इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी चेक कर सकते हैं। द सेम प्रोसेस यू कैन फॉलो फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। यू कैन सी, यू कैन पॉज द वीडियो हियर, यहाँ पे पॉज करके उसको देख सकते हो। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, यहाँ पे पॉज करो, चेक करो अगर इनमें से कौन सी सिचुएशन एग्जिस्ट हो रही है। ओके, और फिर उसके हिसाब से तुम आंसर लिख सकते हो। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स थर्ड यू कैन डू ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, अगेन consistent and inconsistent are there, and obtain the solution graphically. Graph you have to draw. Okay, now let's discuss the most important question of the exercise. Third you can do on your own. Question number 5, the most important one of the exercise. Okay, so let's see. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. So we will take, let breadth and width are the same thing ना, so let breadth equals to x, breadth को x ले लेते हैं, then length will be equals to, length will be 4 meter more than its width, it is given, length जो है 4 मीटर ज़्यादा है, so length will be x plus 4. okay, then half the perimeter जो इसका perimeter निकाल लेंगे, perimeter of a rectangle is 2l plus b, you all know, so it will be p equals to 2 multiply x plus 4, because length is x plus 4 and breadth is x, so x plus 4, it will be p equals to 2x plus 4. okay, this is the perimeter, and see the half of the perimeter is given, half of perimeter का क्या मतलब है? ओके, हाफ ऑफ पेरीमीटर का मतलब है 1/2p, 1/2p इज गिवन, कितना 36। अगर हाफ जो है 36 है तो कंप्लीट पेरीमीटर कितना आएगा, 2 multiply by 36, 72।
हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है वो 36 है, मतलब हाफ p इक्वल्स टू 36, सो p विल बी 72 एंड सी p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 72, 2 से कैंसिल आउट 36, तो 2x प्लस 4 will be equal to 36 and 2x will be equal to 36 minus 4, it will be 32, 2 से cancel out, 2 1 जा 2 6 जा, so x will be equal to 16, x कितना आया 16 and x is what, x is our breadth, so breadth is what 16, so length will be 20, that is the answer. You can clearly see length breadth x के equal है, x कितना आया 16, so 16 and length will be 20, so you can solve like this. क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 यू कैन सोल्व ऑन योर ओन बाय वॉचिंग द वीडियोज, इनको देख के कर सकते हो. इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन टेल मी, आई कैन सोल्व यू फॉर यू, आई विल पोस्ट द वीडियो. बट द क्वेश्चन नंबर 6 इज सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 6 and 7. Okay, in question number 6 a equation is given, you need to form another equation. Then question number 7 you need to draw graph you all know, graph draw करना तुम लोगों को आता है, so that's why I am not discussing about graph. Okay, so that's all for this video, we'll move to the next.